Hello everyone, welcome to the new series Groundwater Wells and Pumps of this YouTube channel. So today I will start from the introduction to groundwater and the type of geological formation or saturated formations. As we know, around 30% of fresh water is available in form of groundwater or subsurface water, and the main source of recharge is precipitation. And ये precipitation से recharge किस तरह से हो रहा है? We have already discussed about it in the hydrologic cycle that after precipitation, some part of the precipitation will infiltrate into the soil, and जो infiltrate हुआ है उस water में से some part will goes to the streams and some part will goes to the deep down and will contribute in the groundwater recharge or will enhance the groundwater level. So there is not only a precipitation which is a source of groundwater recharge, there are also the sources of groundwater recharge like irrigation channels and natural bodies, etc. So when we'll apply or will irrigate the land, in that case some part of the irrigated water will get evaporated and transpirated, some part will goes to the deep down and will contribute in the groundwater by the process of percolation. Similarly, irrigation channels and natural body do. So the जो ground water table है या जो ground water है, जो water infiltrate हो रहा है, ये किस स्पीड से इन्फिल्ट्रेट होगा एंड कितना वाटर होल्ड कर सकता है, ये डिपेंड करता है वहाँ पे किस तरह का सॉइल फॉर्मेशन है, किस टाइप का स्ट्रेटा है. सो जो सबसरफेस जोन है या जो ग्राउंड वाटर जोन है, ये 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड हैं और क्लासिफाइड हैं. सो ये जो क्लासिफाइड जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? जोन ऑफ एरिएशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेडोज जोन एंड another one is zone of saturation. अब ये जो zone of aeration और Vadose zone है, it's further classified into 3 classes. So ये जो soil water belt है, it's adjacent to the land surface and will recharge through the rainfall और precipitation. and इसकी जो ये depth है, ये depth vary करेगी, ये 0.9 to 1.2 मीटर एंड ये भी कहा जा सकता है कि डेप्थ फ्रॉम विच प्लांट कैन एक्सट्रैक्ट वाटर फॉर देयर वाटर रिक्वायरमेंट और टू फिलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट. सो इसकी डेप्थ वेरी करेगी 0.9 to 1.2 मीटर्स. इसके बाद आता है इंटरमीडिएट बेल्ट. द इंटरमीडिएट बेल्ट कैपिलरी फ्रिंज से जस्ट ऊपर में होगा एंड सॉइल वाटर बेल्ट के नीचे दोनों के बीच में होगा. सो ये जो इंटरमीडिएट बेल्ट है, इट कैन वेरी फ्रॉम 0 मीटर टू 100 मीटर्स. इट डिपेंड्स ऑन एरिया. इफ़ द एरिया इज़ वाटर लॉक्ड एरिया है तो ये जो सारे पोर्स हैं वो सेचुरेट हो जाएंगे, और सेचुरेट हो जाएंगे तो क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट बेल्ट है द डेप्थ विल बी 0 इन केस ऑफ वाटर लॉक्ड कंडीशन एंड the depth will be 100 meters or more than 100 meters in case of arid areas or areas where the ground water table depth is more. और जो ground water table है वो काफ़ी नीचे में होगा, depleted होगा. इस केस में the intermediate belt जो है इसकी depth ज़्यादा होगी. Then next one is the capillary fringe. The capillary fringe and zone of saturation are almost same. There is only one difference. In the capillary fringe, the fluid pressure is negative. That's why this capillary fringe is considered into the Vadose zone or zone of aeration. अब ये जो capillary fringe है, इसमें जो capillary rise होगा, it's inversely related to the grain type or the grain size. Like for the clay soil, the capillary rise will be more, or for the silty soil, the capillary rise will be less than as compared to the clay soil.
सो जैसे जैसे आपका ग्रेन साइज कम होता जाएगा, द कैपिलरी राइज जो है वो इंक्रीज होता जाएगा. एंड फॉर द कोर्स सैंड द कैपिलरी राइज इज 15 सेंटीमीटर एंड ग्रेन साइज इसमें कितना होगा 0.5 to 1 mm होगा. एंड फाइन सिल्ट जो होगा इसका ग्रेन साइज क्या होगा 0.02 to 0.05 mm एंड द कैपिलरी राइज विल बी 200 सेंटीमीटर और मोर देन 200 सेंटीमीटर. सो ये डिपेंड करता है कैपिलरी राइज ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ particles, their size, their shape, then the zone of saturation. ये जो वेडोस जोन था it's partially saturated and zone of saturation is it's 100% saturated. So जो saturation है या जो movement of water है in soil particles ये depend करता है स्ट्रेटा पे और दी टाइप ऑफ सॉइल और टेक्सचर और साइज ऑफ द पार्टिकल्स. सो देर आर 4 टाइप ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. सो फर्स्ट वन इज एक्वीफर. सो एक्वीफर इज द स्ट्रेटा विच इज not only holds the water, it also yields the water. So holds water means porosity, holds water and yield water. अब ये किस तरह के सॉइल फॉर्मेशन में होगा जब आपकी सॉइल होगी सैंडी और ग्रेवल्स. एक्वीफर के केस में इट विल होल्ड दी वाटर, will also yield the significant amount of water. and ये किस केस में होगा जब आपका जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है वो इट कंसिस्ट ऑफ सैंडी सॉइल और द ग्रेवल्स. नेक्स्ट वन इज द एक्वीटार्ड. अब एक्वीटार्ड क्या होगा विल होल्ड द वाटर बट इसकी जो यील्ड होगी यील्ड विल बी वेरी लेस, इनसिग्निफिकेंट. यील्ड तो एक्वीटार्ड के केस में वाटर तो ये होल्ड करेगा बट इसका जो यील्ड होगी वेरी इनसिग्निफिकेंट होगी, लाइक सीपेज के फॉर्म में इसकी यील्ड होगी. वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को एक्वीटार्ड जो है एक्वीटार्ड जियोलॉजिकल फॉर्मेशन जो है रिलीज करते हैं. अब ये फॉर्मेशन एक्वीटार्ड्स जो हैं ये किस फॉर्मेशन में पाए जाते हैं जब आपका सैंडी क्ले हो. सैंडी क्ले, सैंडी क्ले के केस में एक्वीटार्ड होते हैं. थर्ड वन इज द एक्वीक्लूड. अब ये जो एक्वीक्लूड होते हैं इट विल होल्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वाटर. बट यील्ड नहीं होती है इसमें. सो अब ये एक्वीक्लूड जो है ये किस फॉर्मेशन में पाए जाएंगे क्ले. देन नेक्स्ट वन इज द एक्वीफ्यूज. जो एक्वीफ्यूज है ये ना ही वाटर को होल्ड करेगा और ना ही वाटर की यील्ड करेगा. सो क्या होगा नाइदर होल्ड नॉर यील्ड. अब ये किस तरह के फॉर्मेशन में होगा जब आपका फॉर्मेशन होगा रॉक और ग्रेनाइट. इस तरह का जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है इस केस में ना ही वाटर ये होल्ड करेगा ना ही इस वाटर की ये यील्ड करेगा, इस वाटर को रिलीज करेगा. सो ये एक्वीफर होल्ड्स वाटर, यील्ड वाटर. एक्वीटार्ड होल्ड्स वाटर बट yield insignificant amount of water or yields like seepage.
In aquiclude, it holds water but not transmit the water. And aqueous is the neither hold nor yield the water. So this is about the groundwater and the type of geological formation in saturated zone. Thank you so much.